Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs related to your 1st and 2nd June ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ current affairs civil services ਦੇ examination ਲਈ especially ਪੰਜਾਬ ਦੇ examinations ਲਈ important ਹੈ. We are going to cover them comprehensively in this discussion. ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ please like, share ਤੇ subscribe ਕਰੋ with as many aspirants as you can. Support us so that we can provide you best quality content in the coming days. Right? So let's start. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਨੋ ਟੋਬੈਕੋ ਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਔਨ ਵਰਲਡ ਨੋ ਟੋਬੈਕੋ ਡੇ। ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। SCO ਸਮਿਟ, ਪਹਿਲਾ SCO ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਥਰੂ crackdown on drug smugglers, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। then first 3D printed temple to come up in India in the state of Telangana, ਤਾਂ ਇਹ temple ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ factual details ਕਰਾਂਗੇ। and then 3D printing, very important for your science and technology section, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। then India Nepal, नेपाल ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੈ। ਨਿਊ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਾਈਨਡ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਆਵਰ IR ਸੈਕਸ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਮੇਨਸ 'ਚ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ PCS ਤੇ ਔਰ ਇਵਨ ਇਨ UPSC ਮੇਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। then cabinet nod 1 lakh crore boost for grain storage, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ to increase the storage capacity, food grain storage capacity of India, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਰਾਈਟ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1.102 ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਦੇਖੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੀਲ ਢਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੱਕਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ 2 to 3 ਟਾਈਮਸ ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੇ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਚੈੱਕ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ, ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ अर्ਲੀ ਬਰਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ that is going on, that is available till for a few days only, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਐਨਰੋਲ ਫॉर ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਯੂ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਅ ਮੈਸੇਜ ਅਵੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਰੀ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਅਸ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ। ਰਾਈਟ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਟੇਬਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੇਸਿਸ। ਸੋ ਜੁਆਇਨ ਦ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਓ। Right, let's start with the first topic. World No Tobacco Day, WHO stresses on developing policies to help tobacco farmers shift to growing food crops. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਦਾ ਬਾਰੂਦ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ WHO क्या कह रहा है कि फार्मर हेल्थ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਸ ਟੋਬੈਕੋ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ, ਐਸ ਦੀ WHO has stated ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਟੋਬੈਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਇੰਪੈਕਟਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਅ ਲੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ WHO ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹੀ ਟੋਬੈਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸ਼ਿਫਟ ਫਰੋਮ ਟੋਬੈਕੋ ਟੂ ਫੂਡ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਬੈਕੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੂਡ ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕਰਨ।
ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਸਮੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ WHO ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ that all the governments in the world they should come up with policies and programs that pushes the farmers to shift towards food crops and move away from tobacco। ठीक है, इसीलिए वर्ल्ड नो टोबैको डे सैलीब्रेट किया जा रहा है जिस च वी नीड फूड नॉट टोबैको ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਥੀਮਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਫੂਡ ਨॉट ਟੋਬੈਕੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਐਫਰਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਏ that they need to shift to food crops and leave away tobacco cultivation। राइट, अगर तुसी साउथ एशिया के नंबर्स देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको फॉलोड बाय इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड थाईलैंड, ये सब कंट्रीज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एवलिया कंट्रीज जड़ियाँ हैं खास एफर्ट करन आपदे फार्मर्स नू टोबैको टू फूड क्रॉप्स ते स्विच कराने लई। राइट, सो ये प्रीलिम्स च भी आ सकता है, ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਐਂਡ ਮੇਨਸ ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਹੈਂਡੀ ਵਿਦ ਯੂ। राइट, सेकंड टॉपिक करते हैं एससीओ समिट इन इंडिया टू बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। G20 ਤੇ एससीओ दोनों ही ਇਹ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁਣ ਸਮਿਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ 2023 ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। यूपीएससी ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ यूपीएससी ਨੇ G20 ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ G20 ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ एससीओ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। राइट, तो एससीओ में वैसे बहुत बार डिस्कस कर चुकी हैं बट इतने लिटिल बिट डिटेल्स में इन्हों की होर डिस्कस करांगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राइट, सो सब तो पहला जो करंट समिट होना है 2023 का, इंडिया ਜਿਹੜਾ फर्स्ट टाइम चेयर होएगा, चेयरपर्सन होएगा इस समिट का, वो 4 जुलाई ਨੂੰ होल्ड होना है। राइट, तो ये वर्चुअल मोड च होएगा, डिजिटल मोड के थ्रू ही कंडक्ट किया जाएगा। एक्चुअल विच जो गेस्ट्स है दूसरी कंट्रीज के वो इंडिया विच नहीं आएंगे। एक्चुअली रीजन ये है, देखो ऑलवेज जो फिजिकल समिट होंगे दैट इज ऑलवेज बेटर दैन वर्चुअल समिट बिकॉज लीडर्स विल कम टू योर कंट्री, दे विल सिट टुगैदर एंड टॉक, फिजिकल कनैक्शन इज रिक्वायर्ड। बट देखो इंडिया की पाकिस्तान नाल नहीं बन रही, इंडिया की चाइना नाल भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इट इज़ लैस लाइकली इंडिया उन्होंने आपदे घर इनवाइट भी नहीं करना चाहता, तो इंडिया बिकॉज चेयरमैन है तो उन्होंने छड्ड भी नहीं सकता। इसे ਲਈ बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इंडिया ने कढ़िया है वर्चुअल मोड। एवरीवन विल बी अटेंडिंग एंड नोबडी विल बी कमिंग टू इंडिया। इंडिया विल नॉट बी इनवाइटिंग दीज एनिमी स्टेट्स एज गेस्ट्स टू इट्स ओन टेरिटरी। ठीक है, साडे रिलेशन इन्हां नाल सही नहीं चल रहे तो असीं किवें इन्हां नूं आपदी कंट्री विच एज अ गेस्ट ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया ने डिसाइड किया है कि वर्चुअल मोड च ये समिट कंडक्ट किया जाएगा। राइट, तो ये थीम क्या है, टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। इंडिया ने यह थीम ये डिसाइड की है टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। राइट, हुण इत्थे सिक्योर जिहड़ा है एक एक्रोनियम है, यानी कि इट मीनस मल्टीपल थिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग, एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, कि सारा एससीओ जिहड़ा है सारी कंट्रीज की सिक्योरिटी ते फोकस करेगा। ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी एंड ट्रेड ते फोकस किया जाएगा एससीओ कंट्रीज द्वारा आपदे बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमी नूं प्रमोट करन विच। connectivity to connect by using transportation, digital means, that will be the focus. U is to maintain unity among all the members of the SCO. R is for respect of sovereignty and territorial integrity। जिवें तुसीं देखो इंडिया का कन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान भी चल रहा है एंड विद इंडिया भी, चाइना दे नाल भी चल रहा है। टेरिटरीज जिहड़ियां ये अपनियां हथिया के बैठे ने। सो इंडिया इज सेइंग दैट all the members should respect the sovereignty and territorial integrity of the member nation। Right, and finally E stands for environment। Environment the concerns they are central to this SCO summit। Right, towards a secure SCO ये इंडिया का थीम है इस साल लई। राइट, इंडिया के अंडर पिलर्स ऑफ कंसिडरेशन क्या रहनगे, किहड़े-किहड़े एरियाज ते मैक्सिमम फोकस किया जाएगा। दीज आर द पिलर्स। Firstly, startups and innovation nu badhan te India will focus, emphasize on all, will cooperate with all the members to increase startups and innovation। Traditional medicine जिवें कि
ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਯੋਗਾ, ਸਿੱਧਾ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਆਯੂਸ਼ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਦੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਕੀਨੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨੀਡੀ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਯੂਥ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਸਕਿਲਿੰਗ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਤਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਲਰ ਰਹੇਗਾ, right? Remember all these pillars and the theme. It will be very important for you when you are writing answers ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ pillars themes mention ਰਾਈਟ। ਬੇਸਿਕਸ SEO ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਟਸ ਅ ਇੰਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼, दैट इज वाई दे आर सिटिंग टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज SEO। ठीक है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, परमानेंट हेडक्वार्टर भी है, दैट इज लोकेटेड इन शंघाई चाइना, राइट। सो ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲੀ ਇਹਦੀ ओरिजिन ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ that we should have such a common forum where we can all sit and discuss our issues and resolve our issues। ठीक है, so चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, Kyrgyzstan and Kazakhstan, these were the first 5 countries known as Shanghai 5 who wanted to establish such a grouping for themselves, right? तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਆਲਸੋ ਬਿਕੇਮ ਇਟਸ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਫਟਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ 2017 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਰੰਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟਲੀ 8 परमानेंट मेंबर्स है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दे, राइट। कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी है, 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स है, मतलब है कि ये फुल मेंबर्स नहीं है एट प्रेजेंट, बट अगे आने वाले टाइम च इन्हों फुल मेंबर बनाया जा सकता है। तो इंडिया ईरान ਨੂੰ सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये होर बाकी कंट्रीज है जिन्होंने ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलिया होया है, राइट। दे आर नॉट फुल मैंबरस येट, ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। 8 ही मैंबरस ने ये हजे तक, राइट। तो तुर्कमैन देखो इन्हों याद करने का भी ईजी तरीका दस दिनी है। रशिया, चाइना, इंडिया बड़ी कंट्रीज हो गई, राइट। इंडिया जिते जिते आऊ चाइना उत्थे पाकिस्तान भी इंसर्ट करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान हो गया। 4 तो ये हो गए, 4 जड़ियाँ हैं वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तो पता ही होगा, 5 टोटल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है अपनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, राइट। सो इस ऑर्गेनाइजेशन विच 4 कंट्रीज है एक्सैप्ट दिस वन, इनू छड्ड के बाकी सारियां SEO दियां मैंबर्स ने, राइट। 4 ऑफ दीज कंट्रीज एंड 4 ऑफ दी अदर वनस, दिस फॉर्म्स SEO। इस तरीके नाल मैंबरशिप तुसी इहदी याद करके रख सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ SEO इज फॉर्म्ड। इहदा गोल क्या है, वही कोऑपरेशन बढ़ाना, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना, डिफरेंट एरिया च कोऑपरेशन करना, चाहे वो ट्रेड होवे, चाहे साइंस एंड टैक्नोलॉजी होवे, चाहे कल्चर नूं अगे बढ़ाना होवे, टूरिज्म नूं स्ट्रेंथन करना होवे, एवरीवेयर दे आर कोऑपरेटिंग टू टेक देयर रिलेशंस फॉरवर्ड, राइट। वेरीअस बॉडीज़ ते इंस्टीट्यूशनस SEO च बने हुए ने टू डील विद डिफरेंट मैटर्स, ट्रेड बढ़ाने लई या फिर फॉरन रिलेशनस नूं स्ट्रेंथन करन लई या फिर टैररिज्म नूं कंट्रोल करन लई डिफरेंट ग्रुपिंग्स इन्हां ने विद इन SEO बनाईयां होईयां ने, राइट। दैट इज द बेसिक इनफॉर्मेशन। हुण SEO की सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया लिए, वाई इज इंडिया
sitting in SCO, why does it want to be a member of SCO? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ benefits ਹੈ on different levels. India is benefiting from SCO and that is why it is a member of SCO. Right? So economically देखो, being a member of SCO, India can promote its trade investments with all the member countries, चाहे चाइना होवे, रशिया होवे, especially Central Asian countries होन, एंड ईवन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਆਪਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। दैट इज़ वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो देखो SCO ਜਿਹੜੀ ਹੈ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 25% ऑफ द ग्लोबल GDP, मतलब ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ दैट इज़ वाई दिस ग्रुपिंग इज़ इंपॉर्टेंट। ਸੈਕੰਡਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਾਈ ਸੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਟੂਰਿਸਟ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਪਲੇਸਿਸ like Kazakhstan for medical education. They also go to Russia and many other areas they are going to. So इस तरीके नाल उन्ना दी economy boost हुंदी है and our children are getting educated. So इस तरीके नाल different tourism, adventure tourism हो गया, study purposes ਲਈ ਜਾਣਾ, business purposes ਲਈ ਜਾਣਾ, Bollywood ਲਈ ਜਾਣਾ, film shooting and all, every kind of tourism can be promoted, recreation lai jana by this cooperation. That is why this grouping is very important for India firstly. Second, energy security lai बहुत ही ज़्यादा important है, बहुत important point है। देखो ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, they have rich oil and gas reserves, ठीक है। इन्हां विच ऑयल ते नैचुरल गैस जिहड़ी है अबंडेंटली प्रेजेंट है। ईवन यूरेनियम जिहड़ी न्यूक्लीयर एनर्जी लई इंपॉर्टेंट है, वो भी कजाकिस्तान वर्गी जगहां ते बहुत ही अबंडेंटली प्रेजेंट है। एंड बाय कोऑपरेटिंग विद दीज कंट्रीज, by being a part of SCO, India is strengthening its energy security. India ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ by sitting with them on SCO। ਤਾਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਵਿਦ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਇਆ SCO, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ SCO ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। दैट मीन्स दे आर रिकॉग्नाइजिंग द कल्चरल वेल्थ। शेयर्ड बुद्धिस्ट है वेल्थ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ SCO ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ SCO ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ SCO ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਕੈਨ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ SCO ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਟਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਟਸ mechanism ਵੀ ਹੈ that is specially meant to fight terrorism, separatism, extremism that is existing, ठीक है। सो इस तरीके नाल SCO is very very important for India। प्लीज ये सारे पॉइंट्स लिख के याद करके रखो। एक क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है, तुसी ये सारे पॉइंट्स अगर उत्थे रेप्लीकेट करके आओगे यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। जस्ट टाइमलाइन बनाओ, पहला इंट्रोडक्शन दिंदे होए पॉइंट्स विच सारा सिग्निफिकेंस लिखो, इशूज़ लिखो। इशूज़ यही है, इशूज़ क्या होंगे SCO दे, यू टेल मी, जस्ट थिंक, पॉज फॉर 1 मिनट एंड यू योरसेल्फ सी, ठीक है। इशूज़ क्या होंगे हैं, हुण देखो इंडिया ते पाकिस्तान दोनों मैंबर है, दोनों हैव टेरिटोरियल इशूज़, बोथ हैव टेररिज्म रिलेटेड इशूज़। पाकिस्तान जिहड़ा है टेररिज्म पुश करदा रहिंदा है इंडिया विच, सो हाउ विल दे बी एबल टू कोऑपरेट सिटिंग इन SCO। इस तरीके नाल इंडिया चाइना दे भी बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं।
राइट। चाइना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਇਸੀलिए ਤਾਂ ਦੇਖੋ SCO ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਮਿਟ। दैट इज़ अ वेरी बिग इंडिकेशन कि SCO ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੀ ਆਈ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ठीक है, it itself shows that SCO has issues as an organization, right? There is lot of internal fighting, right? सो यही सब इशूज़ नहीं है। कार कंट्रीज़ दे आपस च काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स ने। कार कंट्रीज़ दे फील थ्रेटन्ड फ्रॉम रशिया चाइना दैट दे कैन ओवरटेक और यू नो दे कैन हार्म देयर इंटरस्ट। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ SCO ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ SCO ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਫੇਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, right? This type of issues, challenges are there. So this will help you answer every question on SCO. नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब कॉप्स कंडक्ट बिगेस्ट क्रैकडाउन। देखिए ड्रग प्रॉब्लम पंजाब की बहुत वड्डी प्रॉब्लम है, इसीलिए तुसी देखो रिपीटेड इंटरवल्स ते पंजाब पुलिस जिहड़ी है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस करती रहती है। आपां पहलां भी काफ़ी सारे ड्रग नाल रिलेटेड ऑपरेशंस किए ने पंजाब पुलिस दे। ये नवा ऑपरेशन हुण इन्हां ने लॉन्च किया है, ऑपरेशन क्लीन, टू कैप्चर ड्रग स्मगलर्स एट वेरीअस प्लेसिस इन दी स्टेट। जगह जगह ते छापेमारी की गई, रेड्स मारे गए, एंड देयर number of drug smugglers, drug dealers were captured. So this operation clean again याद रखो as a government measure, means the answers च भी लिख सकते हो कि government क्या measures ले रही है drugs ਨੂੰ fight ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ measures डिस्कस किए हैं, आई होप यू रिमेंबर समथिंग। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ operation clean भी mention कर सकते, right? That is how you can use it. नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट 3D प्रिंटिड टैंपल्स। सब तो पहला तो न्यूज़ क्या कह रही है, वर्ल्ड का पूरी दुनिया का फर्स्ट 3D प्रिंटिड टैंपल जोड़ा है तेलंगाना विच एस्टैबलिश किया जा रहा है। तेलंगाना के सिद्दीपेट एरिया विच यह स्ट्रक्चर जोड़ा है सैटअप किया जाएगा बाय अपसूजा इंफ्राटेक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स च क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट 3D प्रिंटेड टैंपल बनाई जा रहा है जिथे, वो याद रखो। उस तो बाद 3D प्रिंटिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर साइंस एंड टैक्नोलॉजी पार्ट, जोड़ा कि तुहाडा GS4 का पार्ट है, राइट? तो 3D प्रिंटिंग हुंदा क्या है, आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक्स। इस तो तुहानू 3D प्रिंटिंग दे प्रोज कॉन्स वो सब अपने आप समझ आ जाएंगे, राइट? देखो 3D प्रिंटिंग क्या हुंदा है, पहली गल 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट? हजे जी तुसी प्रिंटिंग करते हो वो क्या होंदा है, तुहाडे कोल पेज एक निकल के आ जाता है जिहदे उत्ते कंटेंट लिखा होंदा है। दिस इज़ एक्चुअली यू नो नॉट 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग च की होएगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन के आएगा। जिमें कि तुसी मोबाइल फोन बना सकते हो, विसल बना सकते हो, ईवन ऑर्गनस भी बन रहे हैं अजकल तो, ह्यूमन हार्ट, यू नो ओते भी टेस्टिंग चल रही है कि असी 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स भी बना पा रहे हैं, राइट? सो 3D प्रिंटिंग इज क्रिएटिंग एक्चुअल सबसटेंसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर फाइल। ठीक है, एक कंप्यूटर फाइल आप पहला सारे नाल पहला बनाने हैं जिन्हों कैड फाइल भी कहते हैं, जिस च आप पूरा स्ट्रक्चर दे देने हैं जोड़ा ऑब्जेक्ट आप बनाना है, राइट? इस कैड फाइल तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जोड़ा फाइनल ऑब्जेक्ट है बनेगा, दैट इज थ्रू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हुण एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होंदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है। जिमें कि नाम कह रहा है एडिटिव, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग च क्या होंदा है, 1 बाय 1 एक एक लेयर जिहड़ी है जुड़ती जाती है टू गिव यू दी फाइनल ऑब्जेक्ट, राइट? तुसीं समझ लो कि इस तरीके नाल लेयर आफ्टर लेयर जुड़ती जाएगी। लेट्स से कि साडे कोल पेन बन गया, इस तरीके नाल अपने कोल फाइनल पेन फिर बन के आ जाएगा। सो एक एक लेयर जुड़ती जाती है एंड एक एक लेयर जिहड़ी है ऐड होंदी जा रही है एंड इट विल गिव यू दी फाइनल प्रोडक्ट। दैट इज़ वॉट इज़ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग दियां भी ना 2 टाइप्स होंदियां है, एक है एडिटिव, एक है सबट्रैक्टिव। सबट्रैक्टिव क्या होंदा है, जिवें समझ लो पहला कारीगिरी हुंदी सी, एक पत्थर लै लैंदे सी, इनू कट के इनू तोड़ के एक मूर्ति बना दित्ती जांदी सी, राइट? दिस पत्थर यूज टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस मूर्ति, दिस वॉज सबट्रैक्टिव। ठीक है, एक वड्डे सबस्टांस चो कट के तुसी एक सबस्टांस बनाया है। बट एडिटिव च क्या हो रहा है, छोटा छोटा लेयर्स तुसी जोड़ के एक नवा प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, सो दिस इज अ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक वेयर अ फिजिकल
ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ डिजिटल डिज़ाइन। एक कैड फाइल डिजिटल फाइल तुसी क्रिएट कर दिओ विद प्रॉपर डायमेंशनस एंड ऑल जी तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। सो 3D प्रिंटिंग जी है का न्यू टेक्नोलॉजी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। वाई ये बहुत सारे एडवांटेजेस है। सब तो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रिड्यूस वेस्टेज। देखो जी आ वाली मैन्युफैक्चरिंग है सबट्रैक्टिव वेस्ट बहुत सारा मटीरियल तुहाडा वेस्ट हुंदा है। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਵੇਸਟੇਜ ਇਜ਼ देयर, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਐਡੀਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਜੋੜੇ ਹੋ, ਵੇਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਨਲ, ठीक है। सो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो जब वेस्टेज घट है, राइट। एफिशिएंसी ज़्यादा है, राइट। हैल्थ केयर च ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਈਵਨ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਡ ऑर्गन्स बन रहे हैं, राइट। ईज ऑफ एक्सेस हो जाएगी ओवर टाइम, सब को 3D प्रिंटर्स ਜਿਹੜੇ है अफोर्डेबल हो जाएंगे, लोग घरे ही बैठ के समान बना पाएंगे, बहुत अगे की गल है, बट पॉसिबिलिटी है कि ईज ऑफ एक्सेस फ्यूचर विच देखा जाए, राइट। तो इस तरीके नाल ये काफ़ी सारी ये एप्लीकेशनस है हर सैक्टर विच, हॉस्पिटल्स च होवे, स्कूलिंग च होवे, एयरक्राफ्ट्स च होवे, हर एरिया विच 3D प्रिंटिंग की एप्लीकेशन है, इसीलिए काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, यूजफुल टेक्नोलॉजी मन्नी जाती है, राइट। फास्ट डिजाइनिंग, लाइट वेट पार्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट शेप्स बना सकते हैं, ये सब इन्हों के एडवांटेजेस है। बट काफ़ी सारे इशूज़ भी है ये नाल रिलेटेड, राइट। ये करके देखो काफ़ी सारी, सब तो पहला तो जॉब्स खत्म होनगियां, अगर तुसी प्रिंटिंग के थ्रू कंप्यूटर्स ही अगर तुहाडे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग तुहाडी जॉब्स ने वो सारियां खत्म हो सकती है। सो दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट विल ईट अप जॉब्स, ठीक है। सो दिस इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज़ देयर, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट की ऑलरेडी ज़रूरत है, एंड वी विल बी सीइंग ऑफ जॉब्स, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे इशूज़ है, कॉपीराइट इशूज़ ये करके रेज हो सकते हैं, क्योंकि यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग। अगर तुहाडे कोल डिजिटल फाइल है तो तुसी कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, ईवन इफ अ प्रोडक्ट इज़ कॉपीराइटेड यू विल बी एबल टू मेक दैट, राइट। क्वालिटी कंट्रोल का कुछ नहीं पता किहो जे प्रोडक्ट बननगे, यू नैवर नो दैट, राइट। तो इस तरीके के वेरीअस इशूज़ आ सकते हैं, हजे टेक्नोलॉजी इन्नी सफिस्टिकेटेड नहीं है, इनएक्यूरेसीज, इनएप्ट प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, राइट। एंड हजे लई तो इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो, इट इज़ एक्सेसिबल ओनली टू अ फ्यू, क्योंकि हजे इस च इन्नी सफिस्टिकेशन नहीं आई है, इस च इन्नी यू नो सप्लाई जी है घट है। तो ऑल ऑफ दीज आर दी प्रॉज एंड कॉन्स, दोनों ही याद करो, लिख के रखो, बहुत काम आएंगे आंसर्स विच। इंडियन गवर्नमेंट ने हुण देखो नेशनल स्ट्रैटजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बनाई है, ताकि इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा इंडिया उठा सके, ठीक है। ਇਹਦਾ मोटिव क्या होगा इस पॉलिसी का, इस स्ट्रैटजी का, कि इंडिया जिहड़ा है ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का एटलीस्ट 5% शेयर जो है गैदर कर सके। इंडिया दे विच एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग नूं बढ़ावा देने लई प्रॉपर ईकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा, स्किल्ड लोग, स्टार्टअप्स, फाइनैंसिंग, जिन्ना भी समान चाहिदा हुंदा है, जिन्ना भी फैसिलिटेशन चाहिए हुंदी है टू सैटअप न्यू बिजनेसिस इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, राइट। अवेयरनैस, यदि एजुकेशन अबाउट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस किया जाएगा, राइट। सो ये गवर्नमेंट मेजर भी आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दिस कंटेंट विल हेल्प यू राइट मेन्स आंसर्स, राइट। नैक्सट करते हैं इंडिया नेपाल मीट। प्रेजेंटली नेपाल के PM प्रचंड इंडिया विच आए हुए ने, तो यह 7 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स साइन हुए ने विच आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। फर्स्टली इंडिया फर्टिलाइजर प्लांट एक सेटअप करेगा नेपाल विच, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर नेपाल्स एग्रीकल्चर, राइट। पेट्रोलियम पाइपलाइन सेटअप की जाएगी ताकि इंडिया तो नेपाल ईजीली पेट्रोलियम सेल किया जा सके, राइट। दैन ट्रेड ट्रांजिट अग्रीमेंट साइन किया गया है, ट्रेड नूं बढ़ावा देने लई नवी लिंकेजेस रेल रोड के थ्रू, ब्रिजेस के थ्रू क्रिएट कीतियां जाणगियां, राइट। इवन नेपाल के रेलवे पर्सनल नूं ट्रेन भी करेगा इंडिया। यू कैन रीड ऑल द डिटेल्स, दे आर गिवन हेयर। न्यू रेल रूट्स विल बी क्रिएटेड, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू कनैक्टिविटी होएगी, क्रॉस कंट्री ब्रिज बनाया जाएगा, राइट। देन
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स फिर तो इंडिया हेल्प करेगा। देखिए इंडिया ऑलरेडी अरुण 3 नाम ਦਾ प्रोजेक्ट एंड मैनी अदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने च नेपाल ਦੀ हेल्प कर रहा है, बट इन दिस विजिट न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स विल बी टेकन अप, एक कमिटमेंट की गई है। राइट, लॉन्ग टर्म पावर ट्रेडिंग अग्रीमेंट किया गया है। देखो जो नेपाल है वो पावर एक्सपोर्ट्स इंडिया ਨੂੰ करता है ਜਿਹਦੇ थ्रू ਉਹਦੀ मेजर इनकम ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, तो फिर इंडिया नाल हुण ਉਹ अग्रीमेंट कर रहे ने दैट इंडिया विल बी बाइंग नेपाल्स पावर इन लॉन्ग टर्म। Right, so this will help Nepal's economy, that is why this agreement has been signed। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया विल फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ नेपाल्स पावर टू बांग्लादेश। ठीक है, नेपाल इंडिया के थ्रू होके बांग्लादेश ਨੂੰ ਆਪਦੀ इलैक्ट्रिसिटी सैल कर पाऊगा। इस तरीके नाल नेपाल की इनकम होर वधेगी। अगेन अ वेरी बेनीफिशियल अग्रीमेंट फॉर नेपाल एंड आई विल हेल्प बूस्ट इंडिया नेपाल टाइज। ठीक है, एंड फाइनली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की फैसिलिटेशन की गई है। दैट मीन्स इंडियंस इन नेपाल, इंडियन मीन्स दे थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, नेपालीज इन इंडिया दे विल बी एबल टू पे ईजीली। ठीक है, तो मतलब जिन्ने भी लोग क्रॉस बॉर्डर मूव करते हैं जिमें कि ट्रेडर्स, स्टूडेंट्स, पिलग्रिम्स, टूरिस्ट, उन्होंने सब लू काफ़ी ज़्यादा ईज हो जाएगी पेमेंट्स करन दी। राइट, सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स। ये सारे तुसी याद रखने ही है, किमें भी निमोनिक्स बनाओ किसी भी तरीके नाल, यू हैव टू रिमेंबर दैम एट एनी कॉस्ट बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेमेंट, पेट्रोलियम, पावर ट्रेडिंग, राइट, इस तरीके नाल याद कर सकते हो। देन फर्टिलाइजर, हाइड्रो पावर, ट्रेड एंड ट्रांजिट, राइट, इस तरीके नाल याद करो। 7 है। दिस पावर इज विद बांग्लादेश ऑल्सो, एक होर पी लिख सकते हो, पावर यू नो पावर ट्रेडिंग अग्रीमेंट एंड पावर एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश। जिस तरीके नाल भी याद करना है करो, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया नेपाल ते कोई भी क्वेश्चन आवे इस साल विच इज़ हाईली लाइकली आफ्टर दिस विजिट, यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, एंड वन मोर कीवर्ड, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने, दैट ही विल टेक द बायलैटरल टाइज टू हिमालयन हाइट्स। दिस इज द कीवर्ड, इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन च लिख के ही आनी है तुसी, that India is committing to take the bilateral ties to Himalayan heights, and for that India has signed these 7 agreements with Nepal। That is how you use the content that is there in news, that is how you make notes also। बहुत बच्चे मैनू मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि नोट्स किवें बनाने हैं। This is how you have to make notes। This news was in news, this item, and this is how you make the notes so that इन्हां नू तुसी आंसर विच यूज कर सको। राइट, इत्थे तो हजे मैं बहुत लाइनां लिखियां क्योंकि तुहानू एक्सप्लेन करना है, तुसी इहनू रीड करोगे समझोगे, बट तुहाडे नोट्स ये तो भी कंसाइज होने चाहिए है। एक पॉइंट ते आके इस लैवल के नोट्स तुहाडे बनने शुरू हो जाएंगे। राइट, लास्ट न्यूज़ आइटम कर लैंने हैं, इंपॉर्टेंट अगेन। कैबिनेट ने, यूनियन कैबिनेट ने एक नवी स्कीम नू अप्रूव किया है जिस विच ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी नू वधाया जाएगा। देखो इंडिया इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ फूड ग्रेन्स, जिमें आप वीट, राइस प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने स्टोर करने लिए भी एडिक्वेट फैसिलिटीज़ चाहिए हैं विच आर नॉट अप टू द पॉइंट इन इंडिया टुडे। देखो डेटा देखो, करंटली वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 31,000 लाख टन्स ऑफ ग्रेन, out of which we have the capacity to store only 47% of the grains। इन्ना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस चो आप 50% तो भी घट स्टोर कर सकते हैं एडिक्वेट फैसिलिटीज़ दे विच। ठीक है, करंटली अपनी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 1400 लाख टन नू स्टोर करन दी ही है। राइट, तो यही कैपेसिटी नू वधाउण लई गवर्नमेंट जिहड़ी है नवी स्कीम लॉन्च कर रही है। 700 लाख टन की एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी, स्टोरेज कैपेसिटी हर स्टेट विच थोड़ी थोड़ी स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। जिहड़ियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सैटिंग अप दीज गोडाउन्स जिथे फूड ग्रेन स्टोर हो सकन। ते पैसा कित्थों आएगा, फंडिंग कित्थों आएगी स्कीम लई? जिहड़ी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोसैसिंग ते कंज्यूमर अफेयर्स कोल, उन्होंने एग्जिस्टिंग फंडिंग नू यूज़ करके ही ये स्टोरेज फैसिलिटी 700 लाख टन की एडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी जिहड़ी है क्रिएट करनी है। राइट, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडिया का इन्ना फूड जिहड़ा है,
ਫੂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸਟੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਰੰਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। 60% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ, ਵਿਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਸਟ 21% ਆਫ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, right? These are some of the data that you can use in answer, so keep these in mind, right? That is all for this video. Thank you so much for watching.